Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope that you all are in the best of your health. So students, today we are going to start our lecture number 4. In the previous lecture number 3, we have done the reading of unit number 2, and in this lecture we are going to start written work on our workbook of unit number 2. So first open the planner. So student, on the planner page F, we have done the week 4.1 and 3 in the previous lecture, and in this lecture we are going to start a written work from point number 2 and so on, and you have to mention date and day on those points that we done today. Understand student, open the page number 11 of your workbook, unit number 2, the senses. First mention date and day. Question A, name and draw each organ used for the following senses. Okay, for here some senses are given here, 5 senses are given here, and you have to draw the organ that is used to. तो आपने यहाँ पर अपने सेंस ऑर्गन्स को ड्रॉ करना है और उनके नेम मेंशन करने हैं. ओके, सो फर्स्ट वन इज सेंस ऑफ टच. हमारे सेंस ऑफ टच को, छूने की सेंस को, या फिर जो हम जिससे हम फील करते हैं, उसको कौन कंट्रोल करता है? जब हम किससे फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं? हम अपनी स्किन से टच कर सकते हैं. सो और स्किन हेल्प अस टू टच समथिंग. ओके, और सेंस ऑफ टच इज कंट्रोल बाय और स्किन. नेक्स्ट आ रहा है सेंस ऑफ साइट. साइट मीन देखना. सो और सेंस ऑफ साइट इज कंट्रोल्ड बाय और आई. ओके, और आई. सेंस ऑफ हियरिंग. हियरिंग मीन सुनना. सो सेंस ऑफ हियरिंग, हम सुनते कौन से बॉडी पार्ट या ऑर्गन से हैं? और सेंस ऑफ हियरिंग इज कंट्रोल्ड बाय और ईयर. ओके, और ईयर. नेक्स्ट सेंस ऑफ स्मेल. स्मेल मीन सूंघना. और हम सूंघते अपने कौन से बॉडी पार्ट से हैं? अपने नाक से सूंघते हैं. सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ स्मेल इज कंट्रोल्ड बाय और नोज. ओके, सेंस ऑफ टेस्ट. Taste, we taste different food items with from our tongue, with the help of our tongue, which is present in our mouth. So sense of taste is controlled by our tongue. Okay, sense of touch is controlled by skin. So we can see different things with the help of eye. We can hear different sounds with the help of ears, and we can smell different scents and odor with the help of our nose, and we can taste different food items with the help of our tongue. Understand student? So student, आपने ये सेंस ऑर्गन बहुत ही नीटली अपनी वर्कबुक पर ड्रॉ करने हैं और इनके नेम जो है राइट करने हैं. So student, come to the next page number 12. Mention date and day. Part B. Question B, part 1. Choose the correct answer. Okay, you have to choose any one from the 4 options. Which of these is not a way of moving? Okay, you have to tell simply that which of these is in these activities you have to choose only one that in which your movement is not involved. Okay, first one, sleeping sona, hopping पलांगना, running भागना, skipping skip करना means के skip on the one hand. Okay, so in these 4 parts, these 4 options, the sleeping is not a part of moving, so tick the sleeping. Which of these is not one of 5 senses? Okay, हमारे 5 senses, 5 senses में से इनमें से कौन सा जो हमारे senses का part नहीं है? फर्स्ट वन, साइट देखना. ब्रीथिंग, बी सांस लेना. सी टेस्ट चखना. डी हियरिंग सुनना. सो the sight, taste and hearing is a part of our senses. So option B, breathing is not a part of our senses, so tick the option B. If you ate a lemon, okay, अगर आप लेमन को नींबू लेते हो, खाते हो, what would you taste it with? आप उसको अपने कौन से बॉडी पार्ट से टेस्ट करोगे, चखोगे? योर आईज, बी लिप्स, सी टंग, जुबान, डी टीथ. सो you taste different food items with the help of your tongue. Okay, which of the following you might do if your body was tired? Okay, जब आप थक जाते हो, आपकी बॉडी आप टायर्ड फील करते हो, थके हुए फील करते हो. फॉर एग्जाम्पल, आप खेल कर आए हो, कोई भी काम करके आए हो, आप थके हुए फील करते हो, आपकी बॉडी क्या करती है? स्नीज, जम्प, कफ, डी yawn. Option D is the correct option. Okay, which of the senses
डू यू यूज वाइल ईटिंग, ओके, अपने कौन से सेंसेस को यूज़ करके आप जो है आप ईट करते हो, खाते हो। सबसे पहले आप क्या करते हो, जब भी आपके सामने कोई खाने की चीज़ आती है सबसे पहले आपको क्या वो चीज़ नज़र आती है, आप देखते हो, देन फिर आपको उसको स्मेल करते हो, सूंघते हो। उसके बाद जब आपको वो चीज़ देखने में और सूंघने में अच्छी लगी होती है देन आप उसको क्या करते हो, टेस्ट करते हो। सो ऑप्शन बी, साइट देखना, स्मेल सूंघना, टेस्ट चखना, साइट स्मेल एंड टेस्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कंप्लीट द sentences using word bank, okay, here a word bank is given here and you have to fill these blanks. I can dash the stars, आप स्टार्स को क्या कर सकते हो, सुन सकते हो, देख सकते हो, फील कर सकते हो। यू कैन सी द स्टार्स, ओके। आई कैन डैश द टीचर स्पीकिंग, जब भी टीचर बोलती है, अभी मैं बोल रही हूँ तो आप उसको क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। आई कैन लिसन द टीचर स्पीकिंग। नेक्स्ट, आई कैन सॉरी सी, आई डैश हॉट इन सनलाइट, ओके, जब आप सूरज की रोशनी में जाते हो तो आप क्या फील करते हो, गर्म फील करते हो, ओके। आई फील हॉट इन सनलाइट। आई कैन डैश आइसक्रीम, आप आइसक्रीम को क्या करते हो, चखते हो, टेस्ट करते हो। आई कैन टेस्ट आइसक्रीम। आई कैन डैश द फ्लावर्स, आप फ्लावर्स को देख भी सकते हो लेकिन आप फ्लावर्स की स्मेल को क्या कर सकते हो, सूंघ सकते हो। आई कैन स्मेल द फ्लावर्स। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? कम टू द नेक्स्ट पेज. On the page 19, question C, part 1, which of your senses will warn you about these danger, okay. अब आपको बता दिया कि आपको खतरात से आपके कौन से सेंसेस जो है आपको बचाते हैं, आपके सेंसेस, योर सेंसेस हेल्प यू टू सेव फ्रॉम डेंजर। सो योर बस ऑन द रोड, जब भी आप रोड क्रॉस कर रहे होते हो तो आप अपने कौन से सेंसेस को यूज़ करते हो कि आपको बस नज़र, आप कोई भी गाड़ी या बस गुजरते हुए नज़र आती है, आप अपने साइट, देखने की सेंस को, साइट, सेंस ऑफ साइट, ओके। सो योर सेंस ऑफ साइट हेल्प यू टू सी द बस ऑन द रोड। स्टिंगिंग बीज, ओके, जब भी बीज, मक्खियों की बिनबिनाने की आवाज़ को आप कैसे क्या करते हो, सुनते हो। योर सेंस ऑफ हियरिंग हेल्प यू टू हियर द bees, okay. Next, fire in the house, okay, fire in the house. So you see the fire in the house produce smoke, क्या प्रोड्यूस करिए, फायर धुआं दे रही है, ओके, और वो धुआं हवा में जाता है और देन हम उसको स्मेल करते हैं, सूंघते हैं और हमें कुछ फील होता है, हम ये बता सकते हैं कि हाँ यहाँ कहीं आग लगी है, फायर इन द हाउस। सो यू कैन स्मेल द स्मोक ऑफ फायर इन विच इज़ इन द हाउस, ओके. So hot kettle, okay, you can feel the hot or cold with the help of your skin, okay, sense of touch. So our skin provide us sense of touch. तो आपका सेंस ऑफ टच, छूने की सेंस जो है, फील करने की जो सेंस है, उससे आप क्या हेल्प आउट, वो किस में हेल्प आउट करती है, आपको गर्म या ठंडी चीज़ को फील करने में, ओके. नेक्स्ट, word bank or word cloud is given here and you have to fill these blanks. What are these people called, okay. A person who cannot see, ऐसा पर्सन, ऐसा आदमी जो देख ही नहीं सकता, उसको हम क्या कहेंगे, blind, BLIND, blind. And to a person who cannot speak, ऐसा आदमी जो बोल ही नहीं सकता, उसे हम क्या कहेंगे, DUMB, dumb. A person who cannot hear, जो सुन ही नहीं सकता, उसे क्या कहेंगे, deaf, DEAF, deaf. Understand student? Come on student, come to the next page, number 14. Mention date and day. Question D, how does it feel, okay. Feel mean महसूस करना, तो आप अपने फीलिंग, सेंस ऑफ फील या सेंस ऑफ टच को अपने कौन से बॉडी पार्ट से या ऑर्गन से कर सकते हो, अपनी स्किन से हेल्प फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, ओके. सो फील एंड ऑब्जर्व ईच ऑब्जेक्ट देन राइट द करेक्ट वर्ड टू डिस्क्राइब इट्स टेक्सचर, ओके, टेक्सचर. सो यहाँ पर कुछ वर्ड्स आपको कुछ वर्ड्स नहीं, सॉरी, कुछ ऑब्जेक्ट्स या डिफरेंट थिंग्स दे दी गई हैं आपको, जो आप देख सकते हैं. आपने इनको पहले छूना है, देन फील करना है और बताना है कि इनका टेक्सचर कैसा है, ओके. फर्स्ट वन इज a book, a copy, okay. So this is a your workbook and its surface is smooth, क्या है, smooth है. Next, a balloon, its surface is soft. Next, pencil, you see the pencil and its tip is sharp, क्या है, sharp है, नुकीली है. Next, eraser is
the surface of eraser is smooth. Bag. So you can feel you can touch the bag and feel that the surface of bag is hard. Okay, next, tissue paper. The texture of tissue paper is soft. Okay, नर्म होता है, मुलायम होता है. Next, which senses will let you know. Okay, तो आपने बताना है कि आपके कौन से सेंसेस जो है आपको इन चीज़ों को इन कामों में हेल्प आउट करता है. द फूड इज़ हॉट. जब भी खाना गर्म होता है तो आपका कौन सा सेंस जो है आपको बताता है कि गर्म है. जब आप टच करते हैं उससे आपको क्या पता चल जाता है कि ये चीज़ गर्म है या ठंडी है. सो योर सेंस ऑफ टच हेल्प यू टू फील द हॉट और कोल्ड. नेक्स्ट, द फूड इज़ नॉट फ्रेश और रोटन. कि आपको ये आप जब भी आपके सामने खाना आता है, कोई भी फूड आता है, तो आप देखते हो कि ये फ्रेश है, ताज़ा है या फिर पुराना है, ख़राब है. योर सेंस ऑफ स्मेल, आप उसको सूंघते हो एंड देन बताते हो कि ये खाना जो है, ये फूड जो है फ्रेश है या रोटन है. ओके, योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्प यू टू सेंस द फ्रेशनेस ऑफ फूड. ओके, द डोर बेल इज़ रिंगिंग. ओके, जब भी आपके दरवाजे पर घंटी बजती है, डोर बेल बजती है, तो आपका कौन सा सेंस ऑर्गन आपको बताता है कि डोर बेल जो है बज रही है. आप सुन सकते हो उस चीज़ को और आपके ईयर्स बताते हैं. सो योर सेंस ऑफ हियरिंग हेल्प यू टू हियर द डोर बेल रिंगिंग. ओके, so on the next page number 15 we have an activity and we will do this activity when the school will reopen, inshallah. Dear student, come to the next page number 16. Mention date and day. Question F, find the differences. Okay, so student, you have to compare these two pictures. Okay, given here. आपने इन दोनों पिक्चर्स को कंपेयर करना है और देखना है कि इन दोनों पिक्चर्स में क्या डिफरेंसेस आ रही हैं. लुक क्लोजली एट इमेज ए एंड बी. आपने इमेज ए और इमेज बी को देखना है. शेयर योर ऑब्जर्वेशन विद योर पार्टनर. देन आपने अपने पार्टनर, अपने फ्रेंड के साथ अपनी ऑब्जर्वेशन, आपने क्या देखा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, उसको शेयर करना है. फिर क्या करना है, स्पॉट 3 डिफरेंसेस इन गिवन पिक्चर. अब पिक्चर ए और बी में 3 डिफरेंसेस आ रहे हैं, आपने उनको पिक आउट करना है. ड्रॉ द मिसिंग थिंग्स. कि पिक्चर ए में 3 चीज़ें, सब चीज़ें मौजूद हैं, जबकि पिक्चर बी में जो आपके पास पिक्चर बी आ रही है, इमेज बी आ रही है, उसमें 3 थिंग्स जो हैं वो मिसिंग आ रही हैं. मैच योर ड्राइंग टू योर पार्टनर. देन यू हैव टू मैच योर ड्राइंग विद योर पार्टनर. इज़ योर ड्राइंग सिमिलर टू योर पार्टनर्स ड्राइंग. So first we spot 3 differences in these picture. So take a start from the top of picture. You see these are people and this is a boundary of a ground. Okay, so the boundary of ground, some words are written here at the boundary. One word is missing here. Okay, one word is missing here. Walton. Walton. Okay, so you have to write this word Walton. Okay, then we count the number of players in the ground. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 players in picture A. 1 2 3 4 5 6 7. 7 players. Okay, so students, 1 player is missing and that player is this. Okay, you have to draw this player. Draw the picture of this player. Okay, student. So first difference and the second, the player is missing and we have already draw it. The next is in the picture A, the ball, the player is hitting a ball and in this picture the ball is missing. Okay, you have to draw the ball here. 5, use word bank and complete these sentences. Here a word bank is given here and you have to complete these sentences with the help of this word bank. I use my dash to draw. आप अपने कौन से बॉडी पार्ट को यूज़ करके ड्राइंग कर सकते हो, अपने हैंड्स को यूज़ करके. आई यूज माई हैंड्स. ओके, I saw my partner's drawing.
मैं अपने पार्टनर की ड्राइंग को, अपने फ्रेंड की ड्राइंग को, तस्वीर को किसकी मदद से देख सकते हो? सामीन देखना, विद द हेल्प ऑफ योर आईज, आंखों से, EYES आईज। आई यूज़ माई डैश टू लिसन टू माई पार्टनर। मैं अपने पार्टनर, अपने फ्रेंड को सुनने के लिए क्या यूज़ कर रही हूँ? आप मुझे सुनने के लिए अपने कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ कर रही हो? योर ईयर्स, EARS, ईयर्स, अपने कानों को यूज़ कर रही हूँ। स्टूडेंट्स, कम टू द पेज नंबर 17. मेंशन डेट इन डे. क्वेश्चन जी, मूवमेंट्स, मूवमेंट मीन हरकत करना. वी आर लिविंग थिंग्स एंड वी ऑल्सो शो मूवमेंट एंड डिफरेंट मूवमेंट्स. ओके, यू कैन रन, वॉक, जंप. पार्ट 1, ट्राई टू परफॉर्म दीज मूवमेंट्स एंड राइट विच बॉडी पार्ट आर इन्वॉल्व. आपने क्या करना है? आपने इन एक्टिविटीज़ या फिर इन मूवमेंट्स को परफॉर्म करना है एंड देन आपने ऑब्जर्व करना है कि आपका कौन सा बॉडी पार्ट जो है वो यूज़ हो रहा है इस मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए. ओके, सो इन द पिक्चर ए, द बॉय इज jumping, okay, and he is using legs, as he is also holding a rope in his hand, and he is also using his arms. He is using his legs and arms in this activity. So in the next picture B, you see, so in the picture B, a man is doing some kind of exercise. So to do this exercise, he is using his hands as well as his legs and feet. Okay, so hands, legs or feet. Okay, next, the boy is using his eyes to read the book. Okay, so your eyes are involved to see something. Next, picture D, the boy is doing some kind of exercise, so and he is using his arms and legs. Okay, he is using his arms and legs. Next, the boy is bend कर रहा है, झुक रहा है, and he is using his back and arms. He is using his arms and back. Next, and in the picture F, the boy is playing cricket and he use his legs and arms to do this activity, to do this movement to hit the ball. Okay, the boy use his legs and arms. Okay, next, which part of the body do cat use to hold things? कैट अपनी बॉडी का कौन सा पार्ट यूज़ करके चीज़ों को होल्ड कर लेती है? एज वी आर ह्यूमन एंड वी यूज़ आवर हैंड्स टू होल्ड थिंग्स, एंड कैट यूज़ हीज क्लॉज. कैट क्या यूज़ करती है? अपने पंजे इस्तेमाल करके चीज़ों को होल्ड करती है, उठा सकती है. ओके, कैट यूज़ क्लॉज टू होल्ड थिंग्स. कैट अपने पंजों को इस्तेमाल करके चीज़ों को उठा सकती है, होल्ड कर सकती है. So dear students, on the page number 18, 19 and 20, some activities are given here and we will do all these activities when you come to school. Dear student, here lecture number 4 is completed. You have to complete all the written work that we done today of unit number 2. I hope that you would understand all the topic that we learned today. See you in the next lecture with a new lesson. Till then, Allah Hafiz, Fi Manillah.